रिट्रीट से आने के बाद एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ गया, ऐसा लगता है कि अंदर से मुझे बहुत खुशी और ये महसूस होता है कि बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है। और अब मैं वो वॉकिंग मेडिटेशन भी करती हूँ, उससे भी काफी फर्क पड़ा है। Really fantastic, and I'm actually using all the techniques, and the best is the zero technique and meditation. So it is really awesome. So I'm practicing this zero limits meditation and breathing every day. Now I'm really very regular with it, and it has helped me a lot. So I'm very optimistic about everything since I have returned since 1 week, and I can actually write many things, many miracles that has happened. But I'm feeling it, sir. It was really fantastic. Thank you, sir. It's a very great program. I've been, as Pallavi said, I'm also practicing every day that zero limit. I really like it. But a lot of very new things we learned, which makes you feel that healing yourself is in your own hands. मतलब सर ऐसा लगा कि हाँ, 3 दिन ऐसा ही रहना चाहिए, बाकी लाइफ ऐसी होना चाहिए, बिल्कुल सॉइल और बिल्कुल शांति वाली। लेकिन अभी तो सर इतनी भाग-दौड़ और सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ रह के थोड़ा-सा पीसफुल रहें सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से बाकी चीज़ें टेक्निक तो यूज़ की, इसके अलावा बहुत शांत रहा सर वो। दिमाग बिल्कुल अच्छे से रहा। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपके अपने पहले से बिलीव्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो कई बार हम उस चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। बट व्हेन फर्स्ट रिट्रीट अटेंड करने के बाद आई एक्सेप्टेड ऑल दिस थिंग, एंड सेकेंड टाइम इट वाज लाइक रीब्रशिंग। तो वो जो अब डीपर वे में आए, मतलब डीप डाइव हुआ है EFT में, hypnosis में, zero limit में, NLP में, I think what not, every program. Thanks for the retreat, and it was really a wonderful experience. I do look forward to the upcoming retreats. और लास्ट ये 7 डेज में मैंने एक चीज जो महसूस की कि मेरा इनर लेवल, मतलब मेरी आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर सकी, क्योंकि मेरी क्या हैबिट थी कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए चाय पीना है, चाय पीना। एक दिन भी मेरे को चाय की जरूरत ही नहीं लगी कि मैंने भाई को बोला 1 कप चाय बना दे यार, मुझे आवश्यकता ही नहीं लगी। बैठी रिट्रीट की चीजें फॉलो की, डीप ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ने इन मेरे 7 डेज में जो हेल्प की, मैं सर आपको बता ही नहीं सकती। मैं रिट्रीट के कारण ही इन 7 डेज में से अपने आप को निकाल पाई, और मैंने सुरभि की और आपकी चीजों को फॉलो किया। वो एम आई नो लिमिट, इनके कारण सब कुछ गुजर जाएगा और मैं निकल गई हूँ सर। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप मेरे लिए देवदूत बन के आए सर। रिट्रीट में आऊंगी तो मैं मेरी बेटियों को ये बोलूंगी, मेरे बर्थडे का गिफ्ट तुम मुझे रिट्रीट में भेजो। ये रिट्रीट था has to be an integral part of this course. I'll tell you the reason. आपको ध्यान होगा मैंने 1-2 बार कहा शोल्डर पेन बहुत था रिट्रीट में, we couldn't solve that, but I followed that meditation technique, and when I was just about to go into a trance or sleep or whatever it may, I gave this suggestion. In 1.5 days the pain disappeared completely. And आपने जो hypoxic breathing करके exercise करवाया, if you remember, tremendous energy after that, tremendous energy. So my meditation actually has gone up to about an hour, half an hour, 40 minutes. It's not something forced. It's happening naturally. And uska ek transformation ye hai that the urge, because I was finding it extremely difficult to give up grains. But for the last 3-4 days, I haven't touched it. And in fact, my mind is now not craving for tasty food. That is also happening through the suggestion process, which you had, indicated. I think the transformation is far deeper than just diet. It's more at should I say soul level? I don't have a word for it, but more at mind and the level that is ज़्यादा सूक्ष्म है. I'm very happy with this transformation. Very, very happy. Because I'm getting a sense of balance, and I lost my wife 11 years ago to cancer. I have not yet been able to recover. First time in my life, I'm now sleeping more peacefully and less anguish. Is कि आप retreat को integral part कर दे, आपको किसी को फायदा होगा, at least in my perspective.
You cannot extract. It's not a diet course. It's not just cleaning the body. It's cleaning your mind and your desires and so many other things. That's Yes. why I agree with you. It's total life transformation. That life transformation has many more dimensions to it than just food. Uh, I also, endorse what Sanjeev ji said. I think the going to retreat has, actually, changed a lot of things, and I feel more involved, focused in whatever I'm doing in my daily life. But breathing exercise, I do quite a lot while in work. थोड़ा सा time मिलता है, I just say, कि, okay, let me just take this 10 minutes off and just do this, or 5 minutes off and do this. So I think that is really, really helping, and the retreat that has changed the way I look at life. I think, thank you so much, Doctor. I remember the retreat a lot. जैसे सर ने कहा, इसको तो एकदम मैंडेटरी कर देना चाहिए. मतलब without what we learned in the retreat, चीजें apply करना can become very difficult, because the retreat kind of gives us a big support. Like when I have a headache, I don't pop a Saridon, मैं अपना EFT करने लग जाती हूँ. या मैं जीरो लिमिट के बारे में और सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे और अप्लाई करूँ. I know it will take time, but overall I'm trying to keep an open mind. जब आप कुछ फीडबैक देते हो, चाहे मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, I try and think about it. It was quite good. मेरे काफी सारी चीजें जो मेरे इमोशनल लेवल पे मेरे स्ट्रेस लेवल्स थे, या कुछ चीजें जो मुझे परेशान करती थी, अपनी I used to feel stuck in my life for a certain things, उन चीजों को रिजॉल्व करने में मुझे काफी हेल्प मिली है. कुछ टेक्निक्स जो थी, जैसे होपोनोपोनो है, EFT है, वो मैंने पहले भी पढ़ा था, उस बारे में मैंने पहले भी प्रैक्टिस की थी, बट नाउ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एट अ डीपर लेवल कि उसको अब जब मैं कर रही हूँ उन चीजों को, तो वो अब मेरे फायदा कर रही है, पहले नहीं कर रही थी. तो नाउ आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि अब वो होता कैसे है. तो और जो स्ट्रेस लेवल्स थे, पहले मैं बहुत अग्रेसिव थी, गुस्सा बहुत आता था, आजकल अब कम हो गया है धीरे धीरे, तो उस पे भी अच्छा काम चल रहा है. आई एम प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. कुछ चीजों को मैंने कुछ लोगों पे भी ट्राई किया, कुछ एक्टिविटीज पे, कुछ सिचुएशंस पे भी ट्राई किया है, एंड आई एम सीइंग रेजोल्यूशंस ऑन दैट. धीरे धीरे चीजें बेनिफिट कर रही है मेरे लिए. तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक सबको करना चाहिए, क्योंकि पीपल आर यूजुअली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस वो अपनी लाइफ में स्टक होते हैं, वो कुछ चीजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये जो हमने रिट्रीट में सीखा है, ये उन चीजों से बाहर निकलने में काफी हेल्प करता है. तो इन अ वे वी आर एक्चुअली चेंजिंग आवर लाइफ विद इन दोस 3 days ऑफ रिट्रीट. बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक चमत्कार जैसा रहा मेरे लिए, और बहुत मन शांत, शरीर एकदम हल्का. बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, पर अपने आप को अंदर से कैसे चेंज करना, और मैंने वहीं की वहीं वो एक्सपेरिमेंट करके देखे, और मेरा साइटिका का दर्द ठीक हो गया, जो इतना परेशान कर रहा था मुझे कि मैं बैठ नहीं पा रही थी. मैंने तुरंत सुरभि को जाके कहा कि मैजिक हो गया. बोले आंटी मैजिक कैसे होते हैं, और मुझे फिर 2 दिन इतना रिलीफ रहा कि मैं आराम से सारे प्रोग्राम अटेंड कर पाई, पैदल चल पाई, एयरपोर्ट पे इतना चली. वेरी सरप्राइजिंग, कह रही ये क्या हो गया. और उसके अलावा मुझे ऐसे बैठे बैठे एंजाइटी हो जाती थी, तो मैंने वो चालू कर दिया, बंद हो गया. बहुत अच्छा, मैं कहूँगी मजा आया कि सही जगह चली गई, सही समय. फूड तो अच्छा था ही, और बाकी चीजें बहुत सीखने में आई, और अभी भी वो बैठ के करती हूँ मैं. आधी रात को नींद नहीं आई तो वो ट्रीटमेंट चालू कर देती हूँ, वो सच्चे में नींद आ जाती है. बेचैनी हो रही हो, कभी घबराहट हो रही हो, बहुत इफेक्टिव है. मतलब विदाउट मेडिसिन हम इतना अच्छा ठीक हो सकते, थोड़ा सा सोचा नहीं था. फिर हम 4 जनों का जो ग्रुप बना के करा, उसमें तो डॉक्टर साहब रोंगटे खड़े हो गए मेरे. जो इतना गजब असर हुआ कि समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है. एकदम बहुत अच्छा लगा. उस रिट्रीट में हम कुछ चीजों पे काम कर रहे थे, सम इमोशनल स्ट्रेस और समथिंग. आई वाज स्टिल एबल टू रिकॉल फॉर 1 or 2 days, पर अब मैं कोशिश करके भी याद नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सी चीजें परेशान कर रही थी. इट वाज लाइक अ मैजिक दैट हैपेंड, क्योंकि मैं कल भी सोच रही थी, बट मुझे कुछ भी याद नहीं आया.
So I want to say one line here, that any money that brings you happiness, health, and peace is not money well spent. It's money well invested. So I'm happy I invested my money pretty well. I would say some things were bothering for 10, 12 years in my life, and it is gone now.